Now today we are going to start with chapter number 1, sentences. ठीक है? A sentence is a group of words that contain a subject and predicate and makes a complete sentence. Sentence क्या होते हैं? Group of words होते हैं जिसमें आपके subjects होता है, object होता है, ठीक है, predicate भी होता है, ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? पूरा complete sense बनाते हैं. A sentence always begins with a capital letter and ends with full stop, question marks and exclamation mark. ठीक है, जो सेंटेंस है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एट द एंड वी पुट फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है, अ सेंटेंस दैट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें खाली एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है. ठीक है, a sentence that is made up of 2 or more principal main clause is called compound sentence. जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा principal या main clause होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? Compound sentence. A sentence that has a principal clause and 1 or more subordinate clause is called complex sentence. If you use a subordinate conjunction to join principal clause with a subordinate clause, जिसमें principal clause और एक से ज़्यादा क्या होंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे. वो क्या होंगे आपके? वो कौन से सेंटेंस होते हैं आपके? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. वी विल स्टडी दीज 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन डिटेल in next chapter. Let us study phrases and clauses here so that we can understand the kinds of sentences as well as. Now phrases and clauses. ठीक है, मैं बताऊंगी phrases क्या होता है, clauses क्या होता है. phrases क्या होता है? phrase is a group of words that make a sense but not a complete sense. ठीक है, फ्रेजेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंस बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाते. ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. इसके अंदर कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, मीट मी इन द इवनिंग, शी सेट ऑन द लास्ट बेंच. ठीक है, इन ईच ऑफ द अबव सेंटेंस द वर्ड इज इटैलिक्स, हैव अ मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग. इनका मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? आपके फ्रेजेस है. नाउ a clause is a group of words that has a subject and predicate of its own. It can be a part of sentence. Clauses क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है. ठीक है, इसे हम एक क्या मान सकते हैं? सेंटेंस मान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज द विनर. कॉल द बॉय हुज फादर वर्क्स इन अ बैंक. उस बच्चे को बुलाओ जिसके पापा कहाँ काम करते हैं? बैंक में काम करते हैं. ठीक है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज इटैलिक्स. 2 sentences are more complete than a phrase, yet each other needs other clause. He said in the first sentence and called the boy in the second sentence to make a complete set. ठीक है, ये आपके डिफरेंस दिया हुआ है फ्रेजेस और क्लॉज और सेंटेंस के बीच में. ये डिफरेंस है, आपको रीड करना है. ठीक है, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है कि क्या सेंटेंस होता है, क्या क्लॉज होता है और क्या ही फ्रेज होता है. नाउ काइंड्स ऑफ क्लॉजेस. अब हमारे क्लॉजेस के काइंड्स भी होते हैं. फर्स्ट इज प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. Principal clause or subordinate clause. The principal clause or main clause and the subordinate clause are 2 components of a complex sentence. ये 2 components होते हैं हमारे complex sentence के. For example, I don't know where he lives. तो I don't know तो क्या हो गया? Main clause हो गया, principal clause हो गया. And where he lives वो क्या हो गया? आपका subordinate clause. ठीक है, You may choose whichever pen you like. तो you may choose तो क्या हो गया? आपका main clause. And whichever pen you like, ये क्या हो गया? आपका subordinate clause. Now they are complete in themselves, so they are principal clause. The second part, where he lives, whichever pen you like, is this sentence cannot stand on their own. They depend upon the principal clause. I don't know in the first sentence, you may choose in the second sentence. To complete their meaning, they are the subordinate. ठीक है, you may choose whichever pen you like. ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं है. ये दूसरे क्लॉज के साथ मिलकर, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर कंप्लीट सेंस बनाते हैं. नाउ सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो 3 टाइप में डिवाइडेड है. दैट इज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. नाउ नाउन क्लॉज. A noun clause performs the function of noun. It is an answer to the question. ठीक है, ये आंसर होगा क्वेश्चन का what का. जैसे I know that Hari is a good player. मैं जानता हूँ कि हरी कैसा है? good player है. Now adjective clause. An adjective clause performs the function of an adjective and often helps us to know which person or a thing is referred. I have read the book which I borrowed from him.
ठीक है, मैंने वो क्रिएट करी है जो मैंने तुमसे बोरो करी है, ठीक है। Now adverb clause and adverb clause perform the function of adverbs and tell us the time, place, manner, cause, effect, purpose or condition of an action. जो adverb clause है वो हमें time बताता है, place बताता है, manner बताता है, effect बताता है, जो भी action हुआ है। जैसे I will call you when I am free, वो कब कॉल करेगा, जब वो फ्री होगा, ठीक है। Now kinds of phrases, there are 3 kinds of phrases. देखो 3 तरीके के हमारे clause होते हैं, वैसे ही हमारे फ्रेजेस भी होते हैं, वो भी 3 तरीके के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। सबसे पहले नाउन फ्रेज पढ़ेंगे। अ नाउन फ्रेज एक्ट लाइक अ नाउन, इट इज एन आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट, ये भी ऐसा ही है, ये भी आंसर होता है क्वेश्चन का व्हाट का। एन एडजेक्टिव फ्रेज एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव, दिस बुक इज फॉर ग्रेट वैल्यू, ये बुक कैसे है, ग्रेट वैल्यू की है। एन एडवर्ब फ्रेज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब, ही स्पोक टू देम इन अ रूड मैनर, उसने बोला लेकिन कैसे, रूड मैनर में, ठीक है। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अब हम कुछ अलग अलग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंपैरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और एसर्ट समथिंग इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। एंड एसर्टिव सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो एसर्टिव सेंटेंसेस है वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, शी इज नॉट एट होम, तो ये क्या हो गया, आपको नॉट लग गया तो नेगेटिव हो गया। द सिंगर सैंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग, एफर्मेटिव हो गया। एंड ही नेवर टेल्स लाइक, तो नेवर मतलब नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, जिसमें आप कमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हो, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव। फॉर एग्जाम्पल, शीना डू योर होमवर्क, वो कमांड कर रही है। प्लीज स्विच ऑन द फैन, वो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, एडवाइस है कि आपको अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी है। काइंडली अलाउ मी टू गो होम, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, डिपॉजिट योर अमाउंट इन अ नेशनलाइज्ड बैंक, ये क्या है, एडवाइस है। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग लाइक सरप्राइज, डिलाइट, पेन, ग्रीफ, एंगर और डिस्गस्ट, जैसे वाओ, ओ, ये सब क्या है आपके एक्सक्लेमेशन, exclamatory words है। The exclamation sentence end with the mark of exclamation. For example, what a fault it was. ये जो साइन होता है हमारा किसका होता है, exclamation का साइन होता है, हम ऐसा साइन लगाते हैं और इससे end कर। If there is an interjection in the sentence, the mark of an exclamation is put immediately after the interjection. अगर कोई interjection है जैसे ouch, तो आप interjection के बाद ही क्या लगा देंगे, exclamation का साइन लगा देंगे, ठीक है। ouch, I have hurt my finger. Exclamatory sentences and expression can be of the following pattern, जैसे what a beautiful rose, how beautiful the lotus was, alas, देखो इंटरजेक्शन है ना, तो उसके बाद ही लगा दिया, ठीक है। चाहे इंटरजेक्शन होगा उसके बाद ही लगा देंगे, और वैसे कहाँ आता है, लास्ट में आता है। नाउ ऑपरेटिव सेंटेंसेस। An operative sentence expresses a wish, prayer or desire and ends with the exclamation mark. ऑपरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें अपनी डिजायर, अपने प्रेयर को दिखाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस आता है, जैसे विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू लिव लॉन्ग, हाउ विश आई हैड विंग्स, मे गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। कैसे होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम व्हाट, वेयर, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है। लास्ट में हम हमेशा क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। A sentence that asks a question is called interrogative sentence. It always ends with question mark. ये किससे end होता है, क्वेश्चन मार्क से end होता है। Is that your house? What is your name? Why are you crying? And how did she form? ये सारे कैसे सेंटेंस हैं आपके, ये आपके सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Framing interrogative sentences. In case there is an auxiliary verb or modal auxiliary, it is placed before the subject. अगर कोई भी सेंटेंस में auxiliary verb है या modal auxiliary है तो हम किसके पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। If the affirmative sentence has no auxiliary, we add an auxiliary verb, for example, do in the present tense and did in the past tense. ठीक है, अगर कोई भी auxiliary verb नहीं दिया है तो do तो हम present tense में लगाते हैं और does हम did हम past tense में लगाते हैं, ठीक है, और subject से पहले लगाते हैं। For example, you have bought a car, I love my school, Sana plays a tennis, Raman won the prize. तो have you bought a car, do I love my school, does someone play a tennis, या did Raman win the
prize. जैसे Raman won the prize, तो did Raman win the prize. Now use of WH question words. Who is used for person only. Who का use हम किसके लिए करते हैं? Person के लिए. जैसे who is the principal of your school? Mrs. Anila Gaur is our principal. Who rang the bell? It was milkman. तो person के लिए हम क्या लगाते हैं? Who लगाते हैं. Whom is used for person but only as an object. Whom हम person के लिए लगाते हैं लेकिन जब का उसका use object के लिए करेंगे. जैसे whom are you calling? For whom did you get this book? तुम किसके लिए लाई हो ये book? ठीक है. Now what is used for both person and thing? When what is used for a person, it asks about the occupation, profession or social state. ठीक है. What हम person के लिए भी लगाते हैं, thing के लिए. ठीक है. जब हम person के लिए इसको यूज करते हैं वो उसके occupation, profession को बताता है. जैसे who is she? He is my uncle. What is he? He is a doctor. Profession, वो क्या है? Doctor. ठीक है. Which is used for person as well as thing. It is used when there is a limited number of person or thing to choose from. जैसे which of them is your uncle. इसमें से कौन तुम्हारे अंकल हैं? Which is the most populated city? Which of this pen is yours and which of these houses have been purchased by builders. अब कुछ interrogative adverbs हैं और उनके meanings हैं. ठीक है. Now why is used to ask the reason or cause. Why हम कब लगाते हैं? जब कोई हम reason और cause की बात कर रहे हैं. When हम कब लगाते हैं? जब हम टाइम की बात कर रहे हैं. Where कब लगाते हैं? जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. At which place. How कब लगाते हैं? जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. In what manner. How often. जब हम किसी inquires about the frequency. जब हम किसका यूज करते हैं? How. How question beginning with interrogative pronoun. What is your pet name? Who is standing on the roof? Which is your boss? Whom did you go with? Who got the first prize and what is the purpose of your visit. यहाँ आने का purpose क्या है? ठीक है. Question beginning with interrogative adjective. आप question जो interrogative adjective से begin कर रहे, से how हो गया. ठीक है. How much oil has leaked? Which school is famous in the town? Whose bike is parked outside? ठीक है. किसकी बाइक बाहर outside मतलब parked है. तो who का यूज करा गया है? which का, how many का. ठीक है. ये क्या है? आपके interrogative adjectives हैं. Now, which student has got the highest marks and which of the two boys is taller? ये comparison कर रहा है. Adjective में वैसे भी हम comparison ही करते हैं. ये comparison कर रहा है. Question beginning with the interrogative adverb. Why are you late? Where you have been? And how did you solve the problem? How often do you visit your parents? How are you? And when did you arrive? ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है? जो क्वेश्चन जो बिगिनिंग कर रहा है interrogative adverbs. Now question beginning with preposition. Prepositions क्या होता है आपके? to, for, with, from, by. ये सारे क्या हैं आपके? preposition है. अब यहाँ पे कुछ interrogative questions हैं जो किससे begin कर रहे हैं? prepositions है. जैसे to whom did you speak to the phone? For whom have you bought this shirt? With whom did you go to see the movie? From whom did you buy this mobile phone? And by whom was the glass broken? किसने ये glass को तोड़ा? ठीक है. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.